عدالت واضح کر چکی ہے، وہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ججمنٹ کی ایک وقت ہوگا جس کے اندر مخالف پارٹی اپیل کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ 90 دن کا ٹائم ٹک کر رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ میٹنگز کر رہے ہیں اور وہ پروسیس شروع ہے۔ اگر اس پروسیس کا آؤٹ کم جو ہے وہ آئین کے خلاف نکلتا ہے تو عدالت نے بڑا واضح کر دیا کہ عدالتیں بھی یہی موجود ہیں، آئین بھی یہی موجود ہے، کسی کو آئین شکنی نہیں کرنے دی جائے گی، اس پر ایکشن ہوگا۔ انہوں نے اظہر صاحب کو کہا کہ آپ کی پٹیشن جو ہے وہ ابھی کیونکہ 90 دن کا ٹائم ہونا باقی ہے اور اپیل کا حق ان کے پاس باقی ہے، اس وجہ سے وہ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ذرا وقت سے پہلے آپ نے دی ہے تو ابھی رک جائیے، وہ پروسیس پورا ہونے دیں، اس کے بعد بھی اگر یہ الیکشن نہیں کراتے تو اب یہی پٹیشن دوبارہ لے آئیے، جس کو انشاءاللہ عدالت سنے گی بھی اور آئین پاکستان کو پروٹیکٹ بھی کرے گی۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو جمعے کی شام کو یہاں سے فیصلہ آیا اسی کو آج دوبارہ عدالت عالیہ نے اس کو دوبارہ عدالت عظمیٰ نے اس کو دوبارہ انڈورس کیا۔ عدالت نے دوبارہ بڑا کلیئر کیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہر صورت ہونے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ عدالت کا کام نہیں ہے، یہ معزز جج صاحب کا کام نہیں ہے کہ وہ اس آرڈر کے بعد ان کو بتائیں کہ انہوں نے کس طرح سے کب سکیجول، انہوں نے تو ایک واضح لائن دے دی ہے جو آئین نے متعین کی ہوئی ہے۔ اب اس لائن کے اندر ان لوگوں نے چلنا ہے، ہر پاکستانی شہری نے چلنا ہے، کیونکہ ہم سب کا حلف ہے پاکستان کے آئین کے اوپر چلنے کا۔ تو جو اظہر صاحب کی پٹیشن تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان کا آئین کسی طرح کے طریقے سے توڑا نہ جائے۔ تو اس ساری سچویشن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا گورنر پنجاب ہو، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ جس طریقے سے میٹنگز کھیلی جا رہی ہیں، جمعے کی رات کو یہ فیصلہ آیا تھا، ہفتے والے دن میٹنگ ہونی چاہیے تھی، میٹنگ ہو کے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے الیکشن کے سکیجول کا سب کچھ ان کے پاس کمپیوٹر میں پڑا ہوا ہے، اس میں صرف ڈیٹس چینج کرنی، وہ 54 دن ایک سٹرکچرڈ ہے جو ہر الیکشن میں ویسے ہی فالو ہوتا ہے، اس میں ڈیٹس چینج ہونی اور نیچے نوٹیفیکیشن کرنے والے کا نام اور سائن ہونے اور وہ نکل جانا تھا۔ یہ آدھے گھنٹے کا کام تھا، لیکن وہ نہیں کیا گیا، ہفتے والے دن بھی نہیں کیا گیا، اتوار والے دن بھی نہیں کیا گیا، وہ پیر والے دن بھی نہیں کیا گیا، اور آج منگل والے دن بھی جو ٹکرز آئے ابھی تک سامنے اس میں نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ ہماری اپریہنشن ہے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور وجہ اس کی وہی ہے جو ان کی اپنی پارٹی نے ایکسپلین کر دی، ہم نہیں کر رہے۔ شاہد خاقان عباسی کو دیکھ لیں آپ، اس ٹائم مفتاح اسماعیل صاحب کی باتیں دیکھ لیں، اور سب سے بڑھ کے آپ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کی باتیں دیکھ لیں۔ صفدر صاحب اس بات کو کلیئر کر چکے ہیں کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا جو مسلم لیگ نواز نے ایک بیانیہ بنایا تھا اس کو یہ دفن کر چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیانیہ جب دفن ہو گیا تو یہ پبلک کے پاس کیا بات لے کے جائیں گے، ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے پبلک سے کرنے کو۔ جو سرویز آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کیا ہے۔ جو اکانومی کا ان کا موسٹ ایکسپرٹ اسحاق ڈار تھے، انہوں نے اکانومی جس طریقے سے تباہ کی ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے شوکت ترین جیسے محب وطن، آنیسٹ، ایک ملک کے ساتھ وفادار اور ایک بولڈ آدمی کے اوپر اب بغاوت اور غداری کے پرچہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ ان کی لوٹی پوٹی اکانومی کو اس بندے نے ایک نئی شکل دی تھی۔ شوکت ترین کا قصور یہ ہے کہ جب پوری دنیا کی اکانومی کووڈ کے بعد نیچے بیٹھ رہی تھی تو شوکت ترین نے جو دنیا کی چند اکانومیز نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اس میں عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر شوکت ترین نے ایسی سٹریٹجیز انٹروڈیوس کروائیں جس سے اکانومی نیچے جانے کی بجائے اکانومی اوپر اٹھی، غریب آدمی کو سانس ملا، انڈسٹری پنپی، روزگار ملا، ہماری ایکسپورٹ بڑھی، ہمارا اوورآل بزنس ایکٹیویٹی بڑھی، ہماری جی ڈی پی گروتھ جو اس سے پہلے عالمی اداروں نے بہت ہی منفی اس کا تاثر لیا ہوا تھا وہ مثبت میں گئی 2 پہ۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شوکت ترین کے بہت ہی کارنامے ہیں ہمارے ملک کے لیے۔ اگر آپ نے بغاوت اور غداری کا تو میں نہیں کہوں گا، یہ کسی پہ بھی نہیں پرچے بنانے چاہیے، لیکن اگر فراڈ کا کوئی پرچہ بنانا ہے،
डिसीव करने का बनाना है, धोखाधड़ी का करना है, मुल्क को लूटने का करना है, तो इसहाक डार साहब पे करना चाहिए आपको, जिन्होंने झूठे ख्वाब दिखाए कि मैं डॉलर को 200 से नीचे ले आऊंगा। आप वो 200 को, इन्होंने कल को कह देना मेरे मुंह से 200 निकला था, असल में मैंने 300 से नीचे लाना था, और ये मुझे नहीं लगता खुदा ना खास्ता ये 300 पे भी रुकेगा। तो अगर किसी को सजा देनी है, पर्चे देने हैं, तो वो इसहाक डार हैं, शौकत तरीन नहीं है। हमारे यहाँ ये रविश खत्म होनी चाहिए कि जो खिदमत करता है उसमें पर्चे दे दो, जो लूटता है उसे इज्जत के साथ जहाज में बिठा के वजीर बना दो। तो इसलिए जो कुछ ये कर रहे हैं, इनको पता है इलेक्शन में नहीं जा सकते, अवाम ने इनका सियासी बुरकस निकाल देना है। जमानते जब्त तो बड़ी छोटी बात है, इनके पास लोग नहीं मिल रहे टिकट लेने के लिए, इनके लोग हमें राब्ता कर रहे हैं कि हमें टिकट दे दें। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर इंशाल्लाह हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे, बल्कि इनका बिस्तर भी गोल होगा और ये जवाबदेह होंगे अपने एक एक झूठ के, अपनी एक एक बेईमानी के जो इन्होंने अवाम के साथ की है। अच्छा, बुनियादी तौर पर आप समझिएगा कि अदालत ने जो 10 फरवरी का जो फैसला है उस पर भी आज कहा कि उस पर बाकायदा अमल दरामद शुरू हो चुका है। मैंने वो टिकर पढ़ के बताए कि इजलास हो गया है, गवर्नर को लिख दिया है, और अदालत का कहना था कि उस फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। उनके पास अपील का वक्त है, अपील दायर करनी हो कर लें, लेकिन 90 दिन की घड़ी टिक टिक कर रही है, वो अपना वक्त आगे लेकर जा रही है। अब चूंकि अमल दरामद शुरू हो चुका है, वो इजलास कर रहे हैं और उनका इरादा कोई नहीं है। जो आप टिकट्स देख लें, इलेक्शन कमीशन गवर्नर पे डाल रहा है, गवर्नर इलेक्शन कमीशन पे डाल रहा है। तो जो आईनी जिम्मेदारी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और उसमें से सेक्शन 57 के तहत जो 61 दिन का प्रोसेस है, 2 दिन गुजर गए, उसमें अब 59 दिन रह गए हैं और 54 दिन के अंदर का शेड्यूल देना है। इशू बड़ा सिंपल सा है, शेड्यूल इलेक्शन कमीशन देगा, लेकिन इस वक्त मामला है पोल डे का कि इलेक्शन की तारीख देनी है। तो इस वक्त इस बुनियाद के ऊपर कि प्रोसेस शुरू हो गया है, गवर्नर में इजलास हो चुका है गवर्नर हाउस के अंदर, और उम्मीद है इस जजमेंट पे अमल दरामद शुरू होगा। अभी वक्ती तौर पर यह दरखास्त वापस ले ली है कि अगर अमल दरामद नहीं होगा तो दोबारा हमारे पास राइट मौजूद है कि हर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से वो हम अदालतों के दरवाजे दोबारा खटखटाएंगे। हाँ, गिल साहब आप ये बताइएगा कि आपने अपना नाम ECL से निकलवाने की दरखास्त दायर की है, तो कहीं वापसी का सफर तो नहीं शुरू हो गया? देखिए, इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा निकलवाया था और मैं गया था और वापस आ गया था, और तब हमारी हुकूमत गिरी थी, और आप सबको पता है ये एक आपका बुनियादी हक है जिसको सलब किया जाता है। तो आप अपने हक के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैंने नैब के अंदर मेरे को ऐसे पर्चे नहीं पड़े हुए, मैंने कोई दौलत नहीं लूटी हुई, जो क्राइटेरिया है उस पर मैं कहीं से पूरा नहीं उतरता। तो मेरा एक बुनियादी हक है और मैं उस बुनियादी हक को मांग रहा हूं अपने को। मैंने पहले भी, आपको याद है, हमारी हुकूमत गिरी तो मैं पहला था जिसका नाम डाला गया, निकाला, मैं बाहर गया, मैं वापस आया। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा भी ये वो जो आइन ने हमें हक दिया, हम वो हक मांग रहे हैं। अच्छा गिल साहब, मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से जो है वो आप अपनी फैमिली से दूर हैं? इसके साथ साथ आपने पिटीशन में लिखा कि आपकी अहलिया को मोह चाहिए, बहुत सख्त तबीयत कैसी है उनकी। और तीसरी बात, रमेश कुमार के हवाले से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपको जो है वो उनको माफ़ नहीं करना चाहिए था, जो उनका स्टांस था वो गलत था। तो क्या समझते हैं कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पार्टी के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट से इख्तलाफ करते हैं? अच्छा, इसका जवाब मैं ये देता हूं कि फवाद साहब शायद वो पूरी बात उनके इल्म में नहीं थी। जब मैंने मौक़िफ़ दिया तो उसमें पूरी बात इल्म में है। अब आप भी वीडियो सुन लीजिए, फवाद साहब ने भी सुन ली होगी। तो उनको पता नहीं था कि मेरी उनसे मुलाकात किस सिलसिले में हुई थी। तो वो जिस सिलसिले में हुई, मैं दोबारा दोहराऊंगा तो आपने फिर मुझे धर लेना है, तो इसलिए, और आपने मुझे दाल से धर लेना है फिर आपने। तो मेरी उनसे जो मुलाकात हुई थी वो जिस सिलसिले में हुई थी वो डिफरेंट है। फवाद साहब की जो फीलिंग थी वो डिफरेंट है। तो वो जब मैंने मौक़िफ़ दे दिया तो क्लियर हो गया। और इसके अलावा जो आपने ये पूछा मुझे कि मेरी मुलाकात अपनी फैमिली से कब से नहीं हुई, तो तकरीबन 1 साल होने वाला है जब से मेरी मुलाकात मेरी फैमिली से नहीं हो सकी। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जब आप एक नज़रिए पे आके खड़े होते हैं, आप जब एक नज़रिए की जंग करते हैं, आप अपने आप को समझते हैं कि आपने मुल्क की खिदमत करनी है, तो ये फिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसका कोई, अक्सर मैं बात करता हूं तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हौसला करें, हौसला करें। और भाई, मैं हौसले में हूं, आप लोग हौसला करें। आपके हकूक़ की जंग मैं लड़ रहा हूं, मैं तो हौसले में हूं तो सब कुछ छोड़ के आपके साथ आया हूं।
मैं पूरे हौसले में हूं, लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि हो क्या रहा है। जब मैं आपको बताता हूं तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि मैं हौसले में नहीं हूं, मैं पूरे हौसले में हूं। मैं अपने तमाम राइट्स के लिए लड़ रहा हूं, आपको बता रहा हूं। आप लोगों का काम भी अपने लिए लड़ें। इधर कोई नई कॉफी शॉप खुलती है किसी बाहर के मुल्क की, तो आप लोग 4000 बंदा लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। ये बाद में कर लीजिएगा, पहले अपने हकूक की लड़ाई लड़ें। तो मैं जब अपने हक की कोई बात करता हूं तो अक्सर मुझे सुनने में मिलता है, डॉक्टर साहब हौसला करें, हौसला हम आपके साथ है। और भाई मैं हौसला किए हुए हूं तो रोज अदालतों में हूं सुबह से शाम तक। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा ईमान है अपने अल्लाह पे, उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मेरी तस्बीह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो मुझे पता है इसका मुझे अजर मिलना है अल्लाह से, इंसानों से नहीं मिलना। मैं बिल्कुल हौसले में हूं। जो इसका अंजाम होगा वो मेरे रब ने तय किया होगा, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हौसले में आएं, आप अपने हकूक के लिए खड़े हों। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि कोई हक की बात करता है ना तो उसको दबाते हैं। जैसे अभी इन्होंने सवाल पूछा, अब PCL से नाम निकलवा रहे हैं, अब ये नहीं कहा कि आपका फंडामेंटल राइट था, ये डाला क्यों गया? ये डाला नहीं जा सकता। उलट सवाल है, जब तक आप लोग अपनी तौहीन करना बंद नहीं करेंगे, जब तक मैं वो मिसाल नहीं दूंगा, फिर आप लोग मुझे पकड़ लेते हैं कि जानवर के बारे में कहा जाता है वो उसका वैरी है, कि वो अपनी बरादरी का वैरी है। हम मिडिल क्लास अपने ही वैरी हैं। हम एक दूसरे के चेज़े लेते हैं, एक दूसरे की पगड़ी उछालते हैं खड़े होकर। असल सही जगह पर बात करें। अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, उस शख्स के साथ खड़े ना हो, उस ज्यादती के साथ के खिलाफ जाके खड़े हो। वो मैं हूं, वो यहां पर नून लीग का बंदा है, वो वहां पीपल्स पार्टी का बंदा, मीडिया का बंदा, कोई भी बंदा है। तो जब तक हम अपनी बरादरी जो मिडिल क्लास बरादरी है उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं करेंगे, हर चीज को मनफी एंगल से देखना बंद नहीं करेंगे, हम इसी तरीके से ख्वार होंगे। ये याद रखिएगा। आज उधर अभी मेरे साथ कल एक जर्नलिस्ट भी पेश होंगे। अब उनका क्या कसूर है? उनकी तो फैमिली, खानदान, जीना मरना सब कुछ यहाँ है, तो उनका क्या कसूर है बेचारों का? उनसे भी कल यही सवाल पूछ लीजिएगा। तो ना तहकीर किया करें एक दूसरे की, एक दूसरे का एहतराम करना शुरू करें। जब आप एहतराम करेंगे तो आपको वापस एहतराम मिलेगा। जब तक आप अपनी क्लास के साथ ये काम करेंगे, वो जो पीछे बैठे हुए हैं जिनके हाथों में सारी डोरें हैं, वो हंसते हैं फिर कि ये तो एक ही दूसरे को पढ़ रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये काम ना किया करें। मेरा आपको मुअद्दबाना, आप लोग मेरे भाई हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, जब कोई बंदा अपने खिलाफ जुल्म की लड़ाई लड़ रहा हो, अगर आप उसके साथ नहीं हो सकते, अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते, हिम्मत नहीं रखते उसकी आवाज में आवाज मिलाने की, तो जाते हुए धक्का ना मारा करें। ये कम ज़र्फी की बात होती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलो छोड़ दे यार।